فلم کا اگر آپ دیکھتے تو اس میں یہی ایک طریقے سے بھارت کا اعتراف بھی ہے کہ بھارتی ایجنٹ آ کے پاکستان میں جو ہے دہشت گردی بھی کرتے ہیں. بھارتی ایجنٹ پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف پراکسیز کے ذریعے جو ہے وہ حالات کو بھی خراب کرتے ہیں. جہاں تک اور اس میں ایک موویز میں کافی موویز جو ہے وہ گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے اپنے مووی انڈسٹری کو. گورنمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جتنا بھی پہلے کہا کہ آج میں یہاں کر کے صحافیوں کی بات کر رہا ہوں, تو مجھے ایز اے گورنمنٹ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے, ایک فلم کی ایک انڈسٹری ہے جس میں کیمرہ مینز ہیں, جس میں آپ کے رائٹرز ہیں, جس میں آپ کی پروڈکشن کی ٹیمیں ہیں, تو ان کے لیے اتنا مواد نہیں بن رہا. تو یہی ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ان کی سپورٹ کے لیے بھی جو ہے فنڈ رکھے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی قوم کی ہر انڈسٹری کو ہم جو ہے وہ سپورٹ کریں. جس طرح ہم صحافیوں کے لیے آگے بڑھ کے بات کریں, اسی طریقے سے ہم ان کے لیے بھی بڑھ کر سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ اس میں ہے, اس میں اور بھی انشاءاللہ موویز آئیں گی, اس میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بھی بنے گی اور اس میں روزگار کے مواقع بھی بنے گے. اس میں جو اسکرپٹ رائٹر ہے بہت ساری بڑی فیلڈ ہے, ڈائریکشن ہے, پروڈکشن ہے, ان سب کے لیے بھی روزگار کے مواقع بنے گے. کیونکہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی مواد کم بن رہا ہے. آپ کے پاس لوکل پروڈکشن کا اس پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے حکومت سنتے ہیں. دوسری بات آپ نے بات کی کہ چیف منسٹر کے پی کے آ رہے ہیں, بالکل جی موسٹ ویلکم. وہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ایک ایز اے صوبے کے وزیر اعلیٰ ان کا ایک پروٹوکول ہے, ان کو ایک ان کی جو چیزیں ان کو ملنی چاہیے ایز اے پروٹوکول وہ ان کو دی جائیں گی. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. سندھ میں ہمیشہ سندھ کی ایک روایت رہی ہے, سندھ کی ایک صوفیوں کی دھرتی جو, اور سندھ کی عوام نے ہمیشہ لوگوں کو ویلکم کیا ہے, اور سندھ کی عوام نے ہمیشہ جو ہے مہمان نوازی جو ہے اس کا ایک ہمارا ایک رہا ہے, ہمارا بنیادی جو اس کو کبھی اس کا ساتھ ہم نے نہیں چھوڑا. تو بالکل وہ ان کی پوری آزادی ہے کہ وہ آئیں سندھ میں آئیں. ہم ان کو بھلی کار کہتے ہیں, ان کو ویلکم کرتے ہیں. ان کی جہاں جہاں پہ ان کی ہوں گی ایکٹیویٹیز اس پہ ہم ان کو سیکورٹی بھی گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی, گورنمنٹ ان کو اسسٹ بھی کرے گی, اور جو بھی انہوں نے ایکٹیویٹیز کرنی قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر ان کو ان تمام ایکٹیویٹیز میں ان کو پوری ان کو اجازت ہے. ماضی میں بھی اس طرح ہوتا رہا کہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ یہاں آئی تھی, اس کو بھی ہم نے ویلکم کیا. آج پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور پی ٹی آئی کہ جو آ رہے ہیں ایک ان کی پارٹی سے منسلک چیف منسٹر, ہم ان کو بھی ویلکم کریں گے. اور یہ اچھی روایت ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سیاسی اختلافات ہیں, سیاسی آئیڈیالوجی میں آپ کے فرق ہیں, اس کو ہم مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی سیاست سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے, پی ٹی آئی کی سوچ سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے, پی ٹی آئی کی طرز سیاست سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کے پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے تو گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو آپ نے پھر اس کو مہمان نوازی کے ذریعے دیکھا جاتا ہے. تو ہم ان کو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے اچھے میزبان کے طور پر حکومت سندھ جو ہے وہ نذیر صاحب اگر وہ ایک نیت سے رہے کہ یہاں آ کے پیپلز پارٹی کو گالیاں دینی ہے, سندھ کے عوام کو برا بھلا کہنا ہے, حکومت پہ تنقید کرنی ہے اور سر پکڑنا ہے, تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے اسی کے ساتھ ایک سوال, کل ڈی جی ایس پی آر میں کے پی حکومت کے خلاف چارج شیٹ جاری کی ہے, اس میں انہوں نے ویڈیو کلپ چلائی سی ایم کے پی کے, تو اسی وزیر اعلیٰ کو آپ سندھ میں ویلکم بھی کر رہے ہیں. دیکھیے دو چیزیں ہیں نا, ایک یہ ہے کہ جی میں نے کہا کہ ہمیں ان کی طرف سیاست سے مجھے تو سب سے زیادہ اعتراض ہے, میں تو اس کو مان رہا ہوں, ان کے طرف سیاست سے اعتراضات ہیں. آج اگر ملک میں جب ان کے پرائم منسٹر تھے جس طریقے سے وہ طالبان کی دفاتر کھلوانے کے لیے بات کرتے تھے خیبر پختونخوا میں, مجھے اس پہ اعتراضات ہیں. جس طریقے سے وہ دہشت گردوں کو اس کی حکومت میں, عمران خان کی حکومت میں طالبان اور دہشت گردوں کو جو جیل میں تھے ان کو چھوڑا گیا, مجھے اس پہ بھی اعتراضات ہیں. وہ پیپلز پارٹی کے دور میں وہ جو لوگ گرفتار ہوئے تھے وہ پیپلز پارٹی کے فیڈرل گورنمنٹ جو دہشت گرد گرفتار ہوئے تھے وہ عمران خان کی حکومت میں ان کو چھوڑا, مجھے اس پہ بھی اعتراضات ہیں. جو وہ ہمارے ملک کے اداروں کے خلاف ایک گھناؤنا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ہمیں اس پہ بھی اعتراضات ہیں. تو ہم نے سیاست میں ان کے اعتراضات ہیں. ہم نے کب کہا کہ ہم خدا نہ خاصا بھی ان سے ہاتھ ملانے جا رہے ہیں, قطر ایسا نہیں. ہمارے ان کی پی ٹی آئی کی سیاست سے اعتراضات ہیں, پی ٹی آئی کی طرز حکمرانی سے اعتراضات ہیں,
जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में मासूम लोगों की जानें जा रही है, वहां पर दहशतगर्दी हो रही है, और अगर खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत वो काम नहीं कर रही लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और फिर इस्लामाबाद से ढाबे देने की बात कर रहे हैं, वहां पे लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, मुझे उस पर भी एतराज़ात है, उन सारी चीजों पर एतराज़ात है। लेकिन फिर भी मैंने कहा वो एतराज़ात और साथी इख्तलाफात अपनी जगह, जब कोई हमारे घर पे आ रहा है, जब कोई हमारे मेहमान हो के आ रहा है, तो हम उनको बिल्कुल उनका वो जायज हक है, उनको हम वेलकम करेंगे। हाँ, जो हमारे जहाँ पॉलिसी के खिलाफ है वहाँ उनको जो साथी तरीका है वो सारी तरह इख्तियार करेंगे। जो आपने बात भी कीजिए, तो यहाँ के पीपुल्स पार्टी को गालियाँ देते, तो वो पीटीआई ने आज तक सिवाय गालियाँ देना और तनकीद करने के अलावा क्या किया है? इनकी इंग्लिश में इनको सिखाया गया है, यही सिखाया कि गालियाँ दो लोगों को, सोशल मीडिया पे गालियाँ दो, जो आप उससे इख्तलाफ करें उसको जो है पूरी फैमिली को उसको रगड़ दो, तो ये उनकी ताकत रही है। उस पर मैं दो राय नहीं कर रहा, उसमें हमारे इख्तलाफात हैं, संगीन इख्तलाफात हैं, लेकिन फिर भी अगर वो यहाँ पे अपनी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने आ रहे हैं 100%। अच्छा, मेरा देश जाती सवाल है। हमारी साथ ही कम्युनिटी के साथ दो बड़े मसाइल हैं सर। एक तो हेल्थ का इशू है, दूसरा एजुकेशन बच्चों की जो है ना, उसमें बड़े मसाइल होते हैं कि इदारे भी इनके इतने हालात सख्त नहीं होती कि ये मदद कर पाए। वफा की हुकूमत हेल्थ इंश्योरेंस कर रही है, सिंध हुकूमत ने भी इरादा किया था, वो कहाँ तक मनसूबा पहुंचा? और सर उसके अलावा क्या ये मुमकिन है कि NICVD जिना या इस तरह की जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर काफियों के लिए कोई एक डेस्क बने या कोई एक बंदा? अच्छा, ये सारी बातें हमीद साहब, ये सारी बातें अभी आपकी मुंतखब जो प्रेस क्लब की जनरल बॉडी है उनसे डिस्कशन हुई। मैंने एक बात की, उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस की बात की। मैंने कहा जी यार कि सिंध में हेल्थ की तमाम फैसिलिटीज ना सिर्फ सहाफियों के लिए, हर शख्स के लिए मुफ्त है। तो अगर मुफ्त है तो मैं किस चीज का इंश्योरेंस कार्ड दूं? 99% इलाज जो सिंध में हो रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। मतलब 99% में बता रहा हूं, 99% बीमारियां जो है, 99% बीमारियों के इलाज सिंध के बेहतरीन हॉस्पिटल में ना सिर्फ सिंध के लोगों का फ्री हो रहा है, लेकिन पंजाब से आए हुए लोगों का भी, मरीजों का भी फ्री हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के मरीजों का भी फ्री हो रहा है, बलूचिस्तान के पेशेंट का भी फ्री हो रहा है। लेकिन कुछ चंद जगहों पे अगर गवर्नमेंट की बात करें या बाकी जगहों पे जो बाहर से आ रहे हैं, साइबर नाइट में जो बाहर मुल्क से लोग आ रहे हैं उनका भी इलाज फ्री हो रहा है। तो हम तो ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे पाकिस्तान के हमारे पेशेंट का मुफ्त में ये सबसे बड़ी चीजें वो इलाज करें, क्योंकि जान है तो जान है। दुनिया में आप सड़कें बना दो, दुनिया में आप जो है टावर्स बना दो, दुनिया में आप कोई भी सहूलत दे दो, सब सेकेंडरी है। आज अगर किसी को तकलीफ होती है, किसी को बुखार होता है तो घर से बाहर निकलने का दिल नहीं चाहता, किसी को जुकाम होता है तो क्या फीलिंग होती है? जब आप जो मूल की बीमारियां हैं, किसी को जिगर का, किसी को लंग्स का, किसी को हार्ट का, किसी को और बहुत सीवियर बीमारियां हैं, तो हमारे पास तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की पहली प्रायोरिटी ये रहेगी। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की, चेयरमैन बिलावल साहब की फर्स्ट प्रायोरिटी ये रही 2008 से कि हमें पहला क्या काम करना है? पहला काम करना है सेहत देनी, और सेहत फ्री में देनी, और किसको देनी है? सबको देनी है। आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल चले जाएं, सारे साहब के कैमरा लेके जाएं, ना कोई शनाख्ती कार्ड चेक होता है, ना कोई डोमिसाइल चेक होता है, ना कोई आपकी आइडेंटिटी ली जाती है, ना आपकी कोई जबान चेक की जाती है, कौन सी जबान बोलते हैं, ना आपका मजहब चेक किया जाता है। तो हमारी हॉस्पिटल सिंध की फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम छोटे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज देंगे। तो हमें तो वो हेल्थ इंश्योरेंस हमने अपनी जो ट्रेजरी केयर है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस ना सिर्फ साथियों के लिए, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ अल्लाह रहम करे किसी को जाने की जरूरत ना पड़े, आप हॉस्पिटल पहुंचे, आपके हर सहूलत फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इलाज मिलेगा। स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल जिसको सिर्फ हम नहीं अब दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। आपके साइबर नाइट को जो कि पूरी दुनिया में 11 ममालिक हैं और 11 ममालिक में सिर्फ वाहिद पाकिस्तान को फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज है सबके लिए। आपके NICVD स्टेट ऑफ द आर्ट दुनिया के किसी भी मुल्क से NICVD का कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। मैं आपको सबको ओपन चैलेंज देता हूँ, क्योंकि हमारा मुल्क छोटा मुल्क नहीं है, हमारा मुल्क एक बहुत बड़ा मुल्क है। हम 22-23 करोड़ की आबादी का मुल्क है। आप दुनिया के किसी मुल्क से कॉम्पिटिशन कर रहे हैं आपकी हेल्थ फैसिलिटी का। हमारे सूबे की हेल्थ फैसिलिटी NICVD सब दुनिया के हर मुल्क से मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये सारी सहूलियात, ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है।
रंजीत साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि हालिया सालों में जिन हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट की तरक्की और तरजीह के लिए बड़ा काम किया है। पिंक बसें आपने लेडीज के लिए दिलाई, फिर उसके बाद आपने डबल डेकर बसें ऐसी थी, इससे अपनी फिल्म का पता चलता है। लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है वो राशि इंडस्ट्री और एलईडी इंडस्ट्री तालिब इल्मों को बड़ी मुश्किल होती है। सदर से सफेरों का काफ़ी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है और लोग आज मुर्गे बस्ती और चौकों से सफर कर जा रहे हैं, फिर मेरी लाइन उसका भी चल रहा है, तो वहाँ पे बड़ी तकलीफ होगी। तो काइंडली वहाँ पे एक तो जी भाई, अच्छा एक क्वेश्चन और है मेरा, आपने जो ई चालान की इंट्रोड्यूस किया वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बड़ा अच्छा हुआ कि जो पुलिस वाले किया करते थे मोटरसाइकिल वालों के से भी बच गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सारे पुलिस वाले बहुत अच्छे भी थे जो कानून करते थे। अच्छा एक चीज तो ये, दूसरा ये कि सवाल करे मेरे भाई, पूरी स्पीच हो रही है। अच्छा चलो मैं दोनों चीजों का अलग है ना, आगे जी आगे। अब आपने ट्रांसपोर्ट का हमारे सवाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हमें मजा आता है जब कोई कहे कि वी आर द फर्स्ट। ये आपका शहर कराची और आपके पाकिस्तान की कुछ पार्टी सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान की पहली खवातीन के लिए पिंक बसेस शुरू की पाकिस्तान में पहली दफा और पूरी रीजन में पहली दफा, और दुनिया में शायद चंद मुमालिक होंगे जिन्होंने किया। जब हमने शुरू किया तो मैं हल्के कहता हूँ, हमने तो सर्वे नहीं किया था दुनिया में ये कोई सर्विस है या नहीं है, हमने अपने जहन से शुरू की थी कि हाँ हम यहाँ पे पिंक बसेस चलाए। उसके बाद ईवी बसेस पाकिस्तान में पहली मरतबा जो आपकी एनवायरमेंट फ्रेंडली बसेस है वो पाकिस्तान की कुछ पार्टी की हुकूमत ने शुरू की। फिर उसके साथ साथ अभी पिंक स्कूटर ये पहली मरतबा फ्री ऑफ कॉस्ट अभी यहाँ पे आया। मुझे आपकी जनरल बॉडी या नहीं सुन रही, जो हमारी जनरल बॉडी है आपकी प्रेस क्लब, उन्होंने कहा कि हमारी खवातीन साहबी हैं, कोई 150 से ज्यादा खवातीन साहबी हैं, उनके लिए पिंक स्कूटर में असलम खान साहब ने फाजिल साहब ने बात की। मैंने कहा जी आप मुझे ड्राइविंग लाइसेंस दें, मुझे एक ड्राइविंग लाइसेंस दें या 150 ड्राइविंग लाइसेंस दें, 10 दिन के अंदर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पिंक स्कूटर यहाँ प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको ड्राइविंग टेस्ट मुफ्त में हुकूमत सिंध कराएगी, आपके लाइसेंस के पैसे हुकूमत सिंध भरेगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेलमेट देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ईवी स्कूटर यहाँ पहुंचा के देगी। दुनिया में कितने ममालिक जो इस तरह की सहूलत फराहम कर रहे हैं मुझे बताएं, तो हम कर रहे हैं। तो इसीलिए हर सेक्टर में जो आपका सवाल है कि कौन शहर में जी हमारी पूरी कोशिश है कि बस इंशाल्लाह जनवरी में भी हम पेट्रोल आयात में भी शुरू कर दें ये पीपुल्स बस सर्विस, हम खैरपुर में भी शुरू करने जा रहे हैं, हम उसमें कराची की तरह शुरू करने जा रहे हैं, हम शिकारपुर में शुरू करने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से बस आते जाएगा मजीद रूट शुरू करते जाएगा और हमारी पूरा ये फिल्म की हर गली और हर सड़क में सिर्फ ये पसंद कर रहा है। हुकूमत सिंध में यूनिवर्सिटी रोड के आस पास यूनिवर्सिटी रोड पे स्टेट ऑफ द आर्ट बीआईटी आ रही है, इसका पहले बहुत जो है बदुआ की वजह से काम रुक गया था, अभी आप जाके देखें काम शुरू हो गया। अगर वो जाते देख अब काम वहाँ पे शुरू हो गया। जी केपीके के वज़ीर क़यामत के मौके पर पीटीआई ने जलसा करने का फैसला किया है और दरख्वास्त दी गई है, उनको जलसा करने की इजाजत देगी। देखिए मैंने कहा कि इस मुल्क में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सियासत करने का अख्तियार है, सियासत करें, पॉलिटिकल एक्टिविटीज का अख्तियार है, एक्टिविटी करें। पीपुल्स पार्टी किसी हुकूमत किसी को मना नहीं करेगी, लेकिन कानून के दायरे में रहकर करें, अल्फाज का चुनाव बेहतर करें, इंतशार ना फैलाएं, नफरत अंगेज बातें ना करें। और मैं कहूंगा कि सच को देखकर बात करें। जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGI-SPR की, उसमें मैं समझता हूं कि पीटीआई की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके खिलाफ एक कच्चा चट्टा जो खुला है वो सबके सामने अयान है। और ये बात जाहिर है कि जी शुरू से ही चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब पहले सियासतदान थे जो इमरान खान को तालिबान खान कहते थे, याद है आप लोग, सबसे पहले सबसे नौजवान। और उन्होंने कहा कि जो गठजोड़ है, आप देखें कि जब भी दहशतगर्दी के वाकयात हुए किसके विरुद्ध में पाकिस्तान में हुए, कौन सी लीडरशिप को हमेशा निशाना बनाया गया, वो पीपुल्स पार्टी के खिलाफ हुआ। कि यही लोग जो कि ना सिर्फ एक होती है कि साइलेंट सपोर्ट, ये तो इमरान खान तो बड़े खुल के सपोर्ट करते थे तालिबान की,
दहशत गर्दों की वो खुल के ओपन सपोर्ट करते थे, वो कितने छुपी हुई चीज है, ये हकीकत है। और वो दहशत गर्द क्या कर रहे थे, पर कितना आराम से कहने की बात है कि पीटीआई के लीडर ने तालिबान की सपोर्ट कर दी। ये छोटा जुमला है, ये इतनी भी बात नहीं है। उन लोगों से सोच के सोचे, सानिया एपीएस दुनिया की तारीख का सियासतरीन दिन था और सियासतरीन सानिया था। सैकड़ों मासूम बच्चों को जिस तरीके से स्लॉटर किया गया, गोलियां उनके सीनों में फंसाई गई, मुझे बताएं कितने कितने मासूम बच्चे की क्या गलती हो सकती है कि वो इस दहशतगर्दी का शिकार हो। किसी मासूम बच्चे की क्या गलती हो सकती है। और आपने देखा कि उस वक्त जब इमरान खान साहब जिनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, और जब वो गए एपीएस सानिया के लोगों के पास, तो लोगों ने उनका क्या असर किया, उनको अंदर घुसने नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत भी पीटीआई की थी। इसी तरीके से बन्नू जेल ब्रेक हुआ, कुछ छुप के तो अंदर से कहीं नहीं गए, थाले भर भर के दहशतगर्द आए, गाड़ी के जुलूसों में हुकूमत है, थाले भर भर के लोग आए, जुलूसों में आके वहां पे दहशतगर्दों को छुड़वा के लेकर चले गए। कहां है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत? तो पीटीआई का जो स्टांस रहा है वो इन दहशतगर्दों की हिमायत में रहा है, यह अफसोस की बात हो। पीटीआई की आज भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, मुझे बताएं। आपने कराची का अमन भी देखा था, आपने कच्चे का भी देखा था, तो हमारे तमाम हुकूमत मिनिस्ट्री, चीफ मिनिस्टर साहब, आईजी, होम मिनिस्टर सारे इलाकों में जाके अमन कायम कराने में मसरूफ है। आज अलहमदुलिल्लाह सिंध का अमन सबसे बेहतर है। और मैं ये हल्के कहता हूं कि हमारा अमन जो कच्चे में जो ऑपरेशन किया है सिंध पुलिस ने, और जाके बॉर्डर पर जिस तरीके की कार्रवाइयां की और कराची में जिस तरह हमने एक्शन किया है, हमने लॉ एंड ऑर्डर को काफी बेहतर किया है। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का हमने कोई एक मीटिंग देखी है, कोई एक इस तरह की कार्रवाई देखी कि जाके इन्होंने वहां पर अमन करवाया हो? मगरिब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में थाने में सिपाही नहीं बैठ सकता, और ये कहते पूरे पाकिस्तान को आगे जो है नए ग्राह को लेकर करने के लिए। तो जहां पे आपकी प्रायोरिटी है, अवाम की जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत होती है। हुकूमत का पहला आईनी काम यह कि अवाम की जान और माल की हिफाजत करे। लेकिन अगर आपकी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ जो है वो कभी इस्लामाबाद में धरने दे रही हो, या आपने सिर्फ सड़क मार्च और वो मार्च और ये मार्च में टाइम गुजारना, जो लोग जिनकी जिंदगी सब भूचाल में है उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो इनकी जिम्मेदारी है, इनकी हुकूमत जिसमें वो नाकाम रही है। तो यही चीज है जिसमें मैं समझता हूं कि ये अवाम में फैसला करना है, अवाम के साथ आना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको अपनी जान अजीज है या आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो सड़कों पे तमाशे अजीज है। थैंक यू।